Hello students, Jai Shri Swaminarayan. My name is Milan Dholadia. In previous video, we solved up to the question number 2. So now in this video, we start question number 3. Okay? So first of all, read the question number 3. Here, age of 80 students are given to you and that 80 students are selected from a college. Right? So age is given to you, details of age, and we need to find the median age. Also find Q1, D4, P32 and interpret them. Okay, so here from this table we need to find median Q1, D4, P32. Okay. Now here age 17 and number of students 11. That means 11 students have age 17 years, 14 students have age 18 years, 22 students have age 19 years and so on. Right, so here age we need to find the median of age. Median age we need to find. That's why this age becomes our x. Okay, we need to find the median age. So this age becomes our x. Number of students, it is the frequency f. Now from that we need to find median Q1, D4, P32. Okay, अब हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो उनको यहां से उड़ा देते हैं. ठीक है. नाउ यहां पे आपको मीडियन फाइंड करना है. मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, हमें CF फाइंड करना है. राइट, जब भी मीडियन फाइंड करना हो तो पहला काम क्या करना है, CF. फिर चाहे वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों ही टेबल में हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन दैट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल CF. So our first 11 remains as it is. Okay, first 11 remains as it is. After that we need to add this two number, 11 plus 14, 25, 25 plus 22, 47, 47 plus 15, 63, 63 plus 8, 71. Right, and 71 plus 6, 77 plus 4, 81. That means there is a mistake. Sorry, here 62. Here 70. 70 plus 6, 76 plus 4, 80. Because it is already given in the equation. This is the details of 80 students. So our final total number of students is equal to 80, right? So addition of all this frequency is equal to 80. That means your n is equal to 80. Okay, so n 80 students are there, so addition is 80 and this 80 and this is the last cumulative frequency. That means addition of all this number is 7. Okay, now after that we need to find median. Right, so what is the formula for median? For discrete frequency distribution, here we can directly find the median, right, by using the formula n plus 1 by 2th observation. Right, so here our median m. One more thing students, if continuous frequency distribution table is there, so first of all we need to find median class. After that we can find the median, right? In question number 2 we just solve the sum by using that method, right? First of all we just find the median class, after that we can find the median. But here this is the discrete frequency distribution. Here no class is there, so here we do not need to find the median class. Here we can directly find the median. Okay, so median m, what is the formula? N plus 1 by 2th observation. Put the value of n. Your n is equal to 80. right, ये फॉर्मूला जो भी है वो आपको लर्न करने पड़ेगी, आपको याद रखने पड़ेगी, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ओके, एक बार आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो.
नाउ n तो आपको पता है 80, सो 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाय 2 40.5, सो 40.5 ऑब्जर्वेशन। नाउ ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान में रहे, ये आपका मीडियन का आंसर नहीं है। अभी तो आपको ये वैल्यूज चेक करनी है टेबल, उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे और कर देते हैं 40.5, ये मीडियन नहीं है। ओके, इनको तो अभी चेक करना है कि 40.5 किस में जाएगा, सही है 25 में तो हो जाएगा नहीं, किस में जाएगा 47 में। तो 47 के सामने आपका x कौन सा है 19, तो ये 19 आपका आंसर रहेगा। ओके, क्या चेक करना है 40.5 किस में जाएगा, 25 में तो 40 आता नहीं, किस में जाएगा 47 में। 47 में जा रहा है तो आप ये चेक करो कि ये 47 के सामने x कौन सा है 19, बिकॉज आप जो फाइंड कर रहे हो वो है मीडियन एज, और यही है आपकी एज, तो x में से ही आंसर आता है मीडियन का, राइट। मीडियन क्लास हो तो मीडियन का आंसर ऑलवेज मीडियन क्लास के अंदर से आता है, बट यदि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ठीक इनके सामने वाला जो x रहता है, मतलब जिनका आप मीडियन फाइंड करते हो वो वैल्यूज आपका आंसर रहता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कहां पे करते हैं, 22 लिख देते हैं, कुछ स्टूडेंट यहीं पे खत्म कर देते हैं 40.5, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे f का आंसर लिख देते हैं 22, बट आप फाइंड कर रहे हो मीडियन एज, मतलब जिस भी चीज का आप मीडियन फाइंड करो उसमें से आपको आंसर ढूंढना है 90, मतलब कि ये आपका x रहता है, x में से हमें आंसर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज q1। नाउ सिमिलर टाइप फॉर्मूला इज done for the q1, here for median divided by 2, but for q1 it is divided by 4, so n plus 1 by 4th observation, and here q1 is there, so here we need to put 1, but multiplication with 1 it's the same, right? Now put the value of n, your n is 80, so 80 plus 1 divided by 4, so 81 divided by 4th observation. Now 81 divided by 4, 4 to the 8, 20, 4 to the 8, 20, so 5 are। तो अब हमें क्या चेक करना है 20.25, ये अभी आंसर नहीं आया है, तो 20.25 किसमें जाएगा 25, बिकॉज आप 25 को भूल जाओ तो 20 है, तो 20 11 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा 25, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, 25 के सामने x कौन सा है 18, तो ये आपका आंसर रहेगा 18, और ये h है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। ओके, तो ये है आपका q1। आफ्टर दैट हमें चाहिए d4। सिमिलर टाइप फॉर्मूला ही है, d है मतलब डेसाइल से, डेसाइल से तो डिवाइड बाय क्या करना है 10, so n plus 1 divided by 10th observation, और 4th डेसाइल आप फाइंड कर रहे हो तो आगे लगा दो 4। अब क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, n कितना है वो है 80, तो सीधा यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 80 plus 1 divided by 10th observation। Now 80 plus 1 81 divided by 10th observation, so first of all हम मल्टीप्लाई करते हैं 81 के साथ 4, आपके पास तो कैलसी है आप इजीली कर पाओगे, सीधा ही 4 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 10, मेरे पास तो अभी नहीं है, so 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 10, 10 है तो मुझे एक डिजिट कट करना है, तो यहां पे आएगा डेसिमल पॉइंट, so 32.4 ऑब्जर्वेशन। तो अब ये चेक करो कि 32.4 किस में जाएगा, 25 में जाएगा नहीं, 47 में जाएगा यस, तो ये वाला आंसर रहेगा अभी 32.4 किस में जाएगा 47 वाले में, क्योंकि 25 में तो 32 आता नहीं है, तो 47 में जाएगा, तो ये हमारा आंसर है नहीं,
आंसर कौन सा है? आंसर के लिए हमें ये देखना है कि 47 के सामने x कौन सा है? 19। तो हमारा आंसर भी है 19 इयर्स। ओके, D4 का भी आंसर आया 19 इयर्स। नाउ लास्ट जो बाकी है वो है P32, राइट। एक चीज हम भूल गए हैं, इंटरप्रिटेशन, वो हम अभी बाद में लिख देते हैं आंसर आ जाने के बाद। नाउ P32 फॉर्मूला अगेन सिमिलर टाइप ही है। मीडियन था तो डिवाइड बाय 2 किया, क्वार्टाइल था तो डिवाइड बाय 4 किया, डेसाइल था तो डिवाइड बाय 10 किया, परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो n + 1 डिवाइडेड बाय 100th ऑब्जर्वेशन, और ये 32th परसेंटाइल फाइंड कर रहे हैं तो 32 हमें आगे लिख देना है। 32nd परसेंटाइल फाइंड कर रहे हैं तो आगे लिख दो 32 एंड पुट करते हैं वैल्यू n की। n है हमारा 80, so 80 + 1 81 divided by 100 ऑब्जर्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई करो 32 और 81, और जो भी आंसर है उसमें से 2 पॉइंट कट करेंगे, बट आपको ये सब नहीं करना है, आप सीधा ही कैलसी का यूज करो और फाइनली आंसर लिख दो। ओके, सो 32 मल्टीप्लाई 81, 1 to 2 2, 1 into 3 3, 3 plus 16, 16 plus 3 19, 1, 8 is 24 plus 1 25, so 25.92 second ऑब्जर्वेशन। ये हमारा आंसर है 9। क्या चेक करना है हमें? 25.92 जाएगा किस में, वो हमारा आंसर रहेगा, राइट। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये स्पेशल टाइप भी है, क्योंकि यहां पे जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिला है? 25.92। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो 25 है वो इस यहां पे है, पर इनके आगे वाला नंबर जो 26 है वो नीचे जाता है। तो आंसर कौन सा लेंगे इन दोनों में से, 18 या 19, राइट। क्योंकि यहां पे जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होते हैं सीधे 26 से स्टार्ट होता है, मतलब 26 to 47 वो इनके अंदर आता है 19, और यहां पे अब तो 25 ही है, सो इन बिटवीन कोई रेंज है ही नहीं। तो ये स्पेशल टाइप है, इनको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे 25 तक ही रहते हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो 26 से स्टार्ट होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो इन बिटवीन जो गैप आया है उनके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे तो 25.92 है, तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 25 + 0.92, तो यहां पे लिखना है 25th ऑब्जर्वेशन, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 25 + 0.92, ओके, + 0.92। अब एक इनके बीच में रहने वाला है 26 और 25। 26 ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो 25, आगे का जो 0.92 है वो किन के बीच में है? 26 और 25 के बीच में। तो यहां पे लिखो 0.92। अब इनके साथ जो इन बिटवीन गैप जुड़ा हुआ है वो हमें फाइंड करना है, 26 ऑब्जर्वेशन माइनस 25 ऑब्जर्वेशन, ओके। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगेन 25 + 0.92, सो 25 5th ऑब्जर्वेशन, वो तो फिक्स ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो दिक्कत है वो कहां पे है? आगे का जो 0.92 है वहां पे। तो 25th ऑब्जर्वेशन + 0.92। अब 0.92 हो तो खुद तो कोई ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं, राइट, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट होता है। तो वो 0.92 है, वो किन के बीच में है? 26 और 25 के बीच में, राइट, क्योंकि 25.92 दैट मींस इन बिटवीन 25 एंड 26। तो यहां पे देखो आगे का 0.92, उनके बाद 26 ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, ओके। एक तरीके से हम एवरेज ही ले रहे हैं यहां पे। नाउ
25th ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर क्या है? अब हमें यहां से लिखना पड़ेगा 25th ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या है। तो 25th ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या है? 18। तो 18 लिख प्लस 0.92। नाउ 26th ऑब्जर्वेशन, 25 तक यहां पे जाते हैं, 26 इसमें आता है, तो इनका ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या रहेगा? 19। तो 26 ऑब्जर्वेशन जो है उनकी जगह पे हमें लिखना है 19। थोड़ा दिक्कत वाला है ये सब। माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, सो 25th ऑब्जर्वेशन है वो अगेन किस में जाएगा? 18 में। तो माइनस करो 18। कुछ पता चला? अगेन 25th ऑब्जर्वेशन किस में जाएगा? 18 में। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है 18 प्लस 0.92, वो तो एज इट इज रहेगा। यहां पे 26 ऑब्जर्वेशन वो ये नीचे वाले में चला जाएगा, उनका आंसर रहेगा 19। तो यहां पे लिखा है 19 माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, वो तो ऊपर है, उनका आंसर है 18। तो उनकी जगह पे लिखा जाएगा 18। ओके, अब फाइनल कैलकुलेशन करो। 19 माइनस 18, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है नहीं। सो फाइनली इन दोनों का एडिशन करें तो आएगा 18.92। ओके, अगेन ये जो है वो फिर से देखते हैं। यहां पे n की वैल्यू पुट करें तो 80 प्लस 1 81, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25.92 राइट, डिवाइडेड बाय 100 करके। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, यदि ऐसा सम आए तो इनको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब यहां पे 25 हो तो यहां से कहां, तो नीचे वाला रहता है उसमें 26 से स्टार्ट होता है, तो इन बिटवीन जो गैप है वहां पे हम एवरेज लेते हैं। तो ये एवरेज लेने का एक तरीका है राइट। तो हमने यहां पे क्या किया, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92 वो किन के बीच में है, तो 26 माइनस 25। ओके, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, 26 ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो आगे का जो इंटीजर पार्ट है वो पहले लिखो 25th ऑब्जर्वेशन, आफ्टर दैट आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो यहां पे लिखो, मतलब डेसिमल पार्ट है वो 0.92। उनके बाद ये किन दोनों के बीच में आता है उन दोनों का गैप लिखो, 26 ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 25 और 26 के बीच में रहता है। अब इनका आंसर लिखते जाना है। 25th ऑब्जर्वेशन किस में जाता है? 18 में, तो पहले 18 लिखो, फिर 0.92 जो है वो तो लिखना ही है। 26 ऑब्जर्वेशन वो तो इसमें जाएगा, क्योंकि 25 में तो 26 आएगा नहीं, तो इसमें जाएगा, तो रहेगा आपका 19 माइनस 25th ऑब्जर्वेशन वो तो अगेन 18 ही है। और फिर आप फाइनल कैलकुलेशन करो। शायद आपके दिमाग में चल रहा है कि 25.92 वो 25 में तो आता नहीं, तो सीधा इसमें क्यों नहीं चला जाता, राइट। बट ऐसा नहीं है, इसमें जो स्टार्टिंग होता है वो 26 से होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, अब एक चीज जो बाकी रह गई है वो है इंटरप्रिटेशन। तो थोड़ी थोड़ी जगह हमें ढूंढनी है चारों ओर से और इंटरप्रिटेशन लिखना है। मीडियन का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इनका आंसर क्या है? 19 इयर्स। और अगेन मीडियन मीन्स कितने परसेंटेज हुआ? 50%, राइट। तो इनका मीनिंग ये है कि 19 इयर्स आंसर आया, मतलब कि जो टोटल स्टूडेंट्स है 80, उसमें से 50% स्टूडेंट की एज 50% स्टूडेंट की एज 19 और 19 से कम है। ओके, मीडियन मीन्स क्या हुआ? अरेंजमेंट हुई एज की, बराबर। तो 18 है, उनके आगे के जो भी आंसर्स होंगे वो 19 से कम होंगे, राइट। और राइट हैंड साइड पे जितने भी आंसर होंगे, यदि हम एसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो राइट हैंड साइड पे सभी आंसर्स है वो ज्यादा होंगे। मतलब आगे से लेके 50% तक के स्टूडेंट की एज या तो 19 होगी या 19 से कम होगी, राइट। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि 50% स्टूडेंट की एज 19 या 19 से ज्यादा भी होगी,
राइट। तो आप दोनों ही तरीके से वो लिख सकते हो इंटरप्रिटेशन। यहां पे हम लिखेंगे कि एज ऑफ 50% स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 19 ईयर्स। 50% मतलब आउट ऑफ 80 है तो 50% मतलब 40 स्टूडेंट हुए, तो 40 स्टूडेंट ऐसे है जिनकी एज 19 या 19 से कम है, राइट। तो यही हमें इंटरप्रिटेशन में लिखना है। एम मींस ये मीडियन का इंटरप्रिटेशन है, आपको इनके ठीक नीचे ही इंटरप्रिटेशन लिख देना है। ओके, सो एज ऑफ 50% स्टूडेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू 19 ईयर्स। ऐसा ही इंटरप्रिटेशन Q1 में भी लिखना है। Q1 मतलब कितने परसेंटेज? 25%, राइट। मतलब आगे के जो 25% है उनकी एज 18 या 18 से कम होगी, और पीछे वाले जो 75% रहे उनकी एज इससे ज्यादा होगी। ये है इनका मीनिंग, राइट। आगे से 25%, यहां मतलब 25% हुआ तो इन सब की एज लेफ्ट हैंड साइड में तो कम होगी असेंडिंग ऑर्डर, 18 या 18 से कम होगी, राइट हैंड साइड में वो ज्यादा होगी। तो हमें लिखना है 25% स्टूडेंट की एज 18 या 18 से कम है। तो इनका इंटरप्रिटेशन रहेगा एज ऑफ 25% स्टूडेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू 18 ईयर्स। वैसे ही हमें D4 का भी इंटरप्रिटेशन लिखना है। D4 का मीनिंग आपको अब तो पता ही होगा, कितने परसेंटेज होगा? 40। डेसाइल्स 10% पे चलते हैं, फोर्थ डेसाइल दैट मींस 40%। सो एज ऑफ 40% स्टूडेंट्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 19 years। ओके, उसी तरीके से P32 का भी आएगा। इसका क्या मीनिंग है कि आगे के मतलब जो 40% स्टूडेंट है उनकी एज, जो आंसर आया 19 या उससे कम होगी। ओके, एक चीज आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि यदि 50% स्टूडेंट की एज 19 से कम है, 40% की तो 19 से कम ही होगी। ओके, आफ्टर दैट हमें P32 का इंटरप्रिटेशन लिखना है। सो P32 परसेंटाइल है, वो एक परसेंटेज पे चलते हैं, राइट। सो P32 दैट मींस 32%, राइट। सो 32% स्टूडेंट की एज 18.92 या उससे कम होगी, तो हम इंटरप्रिटेशन में लिखते हैं ना, राइट। एज ऑफ 32 दैट मींस 32% ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू 18.92 years, राइट। 18.92 years। तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ। अब इनका जो हमने प्रीवियस वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखा था कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया है, उसमें भी हमने मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल फाइंड किए थे, राइट। पहले उनके क्लास फाइंड किए थे, बाद में फॉर्मूला अप्लाई किए थे। ये जो है वो कैसा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसमें डायरेक्टली हमें आंसर पता चल जाता है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, राइट। ओनली फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले CF ढूंढ लो, सीधा ही हमें आंसर मिल जाता है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल read this question. Use of following data to find the median salary of employees in a firm. Also find the lower limit for the richest 20% employees. First of all, we need to find the median salary, right? Use of following data to find the median salary of employees.
After that, also find the lower limit of the 20% employees. Okay. If some frequency distribution is given to you, now frequency distribution always go from lowest to richest. राइट, वैल्यूज है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। एक हम पहले मीडियन फाइंड करने में हम पहले क्या काम करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग के थ्रू जाए तो लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक ये जाएगा। हमें क्या बोला है, लोअर लिमिट ऑफ दी रिचेस्ट 20%। रिचेस्ट कहां पे होते हैं, राइट हैंड साइड से, मतलब कि यहां से 20%, राइट, यहां से 20%, मतलब ऐसा हुआ, राइट, ये 20% है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि लोएस्ट से हाईएस्ट जाता है, राइट, यहां पे 0% होते हैं, यहां पे 100% होते हैं। वैल्यूज क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। हमें रिचेस्ट 20 चाहिए, मतलब यहां से 20% चाहिए जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अब इसमें दो चीजें हुई 20% में, ये जो है यहां पे वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू यहां पे मिलेगी, जो 20% रिचेस्ट है उसमें। ये जो है वो क्या होगा, अपर लिमिट, और यहां पे रहेगी लोअर लिमिट। रिचेस्ट 20%, उसमें भी पार्ट्स होंगे ना, मतलब मान लो कि कोई कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज की सबसे ज्यादा 20% जिनकी सैलरी है वो 80,000 टू 1 लाख, तो किसी की सैलरी 80,000 भी होगी, किसी की 1 लाख भी होगी। तो ये रिचेस्ट 20 है, उसमें दो चीजें हुई, सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है 1 लाख, उससे ज्यादा किसी की है ही नहीं, और वो जो 20% है उसमें लोएस्ट सैलरी है 80,000, मतलब दो लिमिट यहां पे आपको मिलेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हमें क्या बोला है कि ये जो 20% है उनकी लोअर लिमिट फाइंड की जाए, मतलब ये वाला पॉइंट ढूंढा जाए, राइट। हमें 20% जो है रिचेस्ट, उसमें भी सबसे लोएस्ट किसकी है, राइट, ये जो 20% है उसकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है। मतलब कि हम यहां से देखें, ये यहां से 20 है, तो यहां से कितना हुआ, 80% हुआ कि नहीं। 0 से देखें तो हमें क्या चाहिए, 80%, कि 80% का आंसर क्या, राइट। अगेन ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है। अब हमें रिचेस्ट बोला गया, मतलब आगे से 20% जिनकी सबसे ज्यादा है वहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लोएस्ट टू हाईएस्ट जाता है, बराबर। तो जो हाईएस्ट है वहां से 20%, मतलब कि यहां से कितने हुए, वो 80%, राइट। लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी है, तो 80% हमें फाइंड करने हैं। अब 80% फाइंड करने के कितने रास्ते हैं, 80% हम कितने वे से फाइंड कर सकते हैं, दो वे से। डेसिमल्स का आप यूज करो तो ये वैल्यू रहेगी D8, D8 का मीनिंग है 80%, और परसेंटाइल पे जाओ तो वो है P80, P80 उसका मीनिंग भी 80% है, D8 का मीनिंग भी 80% है। आप इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, और दोनों वैसे सेम ही आंसर आता है, राइट, दोनों का मीनिंग सेम ही है 80%। तो या तो हम D8 फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हम P80 फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम यूज करेंगे P80 का, तो यहां पे लिख देते हैं कि P80 हम फाइंड करेंगे। ओके, अब इस वे से हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे भी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो मोर देन टाइप दिया है। सैलरी में हम देखो तो लिखा है 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर, तो मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें चाहिए लेस देन टाइप। सबसे पहले तो हमें क्लास क्रिएट करने होंगे यहां से, तो सबसे पहले क्या लिखा है 5 और मोर, तो 5 से कम तो है ही नहीं, 5 और मोर तो 5 से कम तो है ही नहीं, तो 5 से इसका स्टार्टिंग है। अब 5 को आगे क्या है 10 और मोर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 to 10। अब उनके बाद 15 और मोर, सो 10 to 15। आफ्टर दैट 20 और मोर, सो 20 to 25, 25 और मोर, सो 25 to 30, एंड लास्ट जो है 30 और मोर। बट वो मोर कहां तक है, कितने हैं वो हमें नहीं पता है, इसलिए इनको हम एज इट इज रखेंगे 30 और मोर। ओके,
सेकेंड थिंग, जब हमने एक क्लास लिखे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि ये जो दी है वो मोर देन टाइप दी है, हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, राइट। इनके लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के लिए। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको ओनली सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज जाती है, बाकी सब में ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन रहता है। मोर देन टाइप में उल्टा होता है कि जो लास्ट है वो एज इट इज फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में दी है, बाकी सब में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होता जाएगा, बराबर है। और यदि आप ध्यान से देखो तो भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 5 से ज्यादा कितने हैं, 120, 10 से ज्यादा कितने हैं, 117, तो उनका जो गैप हुआ वो क्या हुआ, 5 to 10, राइट। 5 से ज्यादा कितने एम्प्लॉयज है, 5000 से ज्यादा होगा सर 120, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया है 1000 रुपीज, मतलब 5 to 10, 5000 to 10,000, 5000 से ज्यादा सैलरी है 120, 10,000 से ज्यादा है 117 की, तो जो 3 पर्सन हुए उनकी सैलरी क्या होगी, 5000 to 10,000 की रेंज में, मतलब कि 5 to 10, तो सब्ट्रैक्शन करो 120 माइनस 117 वो रहेगा 3। सेम वे अब आगे देखो तो 10 और मोर 117, 15 और मोर 106, तो उनके बीच में जो 11 पर्सन है 117 माइनस 106 वो इसकी रेंज में होंगे, 117 माइनस 106, आपको कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन ही करते जाना। आफ्टर दैट 106 माइनस 76 30, उनके बाद 76 माइनस 31 45, आफ्टर दैट 31 माइनस 12, 31 माइनस 12 19, और 30 और मोर वो एज इट इज ही रहेंगे जो आपको टेबल में दी है 12। लेसन टाइप में फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज जाती है, मोर देन टाइप में लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज जाती है, बराबर। तो ये हमारा टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। आगे जो हमें फाइंड करना है वो है मीडियन एंड PAT। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा 120, क्योंकि पहले ही दिया था कि 5000 से ज्यादा, मतलब इन सबके सैलरी जो है 5000 से ज्यादा तो ये सभी है, उसमें है 120। अदरवाइज हम कैलकुलेशन करें, इन सबका एडिशन करें तो भी यही आएगा। ओके, आगे का काम हमारा क्या है, CF, क्योंकि मीडियन फाइंड करना है तो CF की जरूरत तो है ही, राइट। मीडियन फाइंड करना है तो CF तो हमें चाहिए ही, तो हम फाइंड करेंगे CF। जो हमें CF दिया गया था वो मोर देन टाइप, ये जो रहता है वो हमारा लेस देन टाइप रहता है। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे CF। CF में क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही जाएगी, उनके बाद इन दोनों का एडिशन 11 प्लस 3 14, 30 प्लस 14 44, 44 प्लस 45 89, 89 प्लस 19 108, एंड 108 प्लस 12 120 आ गया सर, मतलब कि ये बराबर है। ओके, अब हम जाते हैं मीडियन फाइंड करने की ओर। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, मीडियन क्लास, राइट। मीडियन क्लास बिकॉज एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसलिए। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला, क्लास इंक्लूडिंग n by टूथ ऑब्जर्वेशन। सो क्लास इंक्लूडिंग n की वैल्यू पुट करो, वो है 120। ये तो अब आपको पता है कैसे, किस वे से फाइंड करना है, राइट। और सबसे पहले तो आप ही ये सॉल्व करो और अपना आंसर जो है वो इस वीडियो में देख के चेक करो कि आपका बराबर आया कि नहीं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हो कि कैसे मीडियन फाइंड करना है, राइट। नाउ 120 डिवाइड बाय 2 60, राइट। सो क्लास इंक्लूडिंग 60th ऑब्जर्वेशन, और यहां पे मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं बट आपको पूरा ही लिखना है, क्लास इंक्लूडिंग 60th ऑब्जर्वेशन। ओके, ये 60th ऑब्जर्वेशन हमें किस में चेक करना है, CF में। कि CF में 60 कहां पे जाएगा, तो 44 में तो 60 आएगा नहीं, किस में जाएगा वो 89 वाले, मतलब कि ये आपका जो है वो मीडियन क्लास रहेगा। कौन सा है क्लास, 22 25,
ओके, मीडियन क्लास में ढूंढना था, n/2 का ऑब्जर्वेशन 120/2 60, वो 60 हमें देखना है CF में। 44 में तो 60 आता नहीं है, किसमें जाएगा वो 89 वाले, तो ये जो आपका है वो रहेगा मीडियन क्लास। तो यहां से लोअर लिमिट L कितनी आएगी 20, क्लास लेंथ C, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 20 5 CF, वो हम ऊपर का लेते हैं तो 89 के ऊपर वाला है 44, और फ्रीक्वेंसी F वो तो इसी ये जो मीडियन क्लास है उनकी ही ली जाती है 145। अब हम मीडियन का फॉर्मूला यहां प्रूव कर सकते हैं। सो मीडियन M is equal to lower limit L plus n/2 minus CF upon F into C। इनकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला याद रहेंगे तो फिर ये चैप्टर बहुत इजी है। तो सबसे पहली ट्राई यही करो कि आप फॉर्मूला लर्न कर पाओ। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है L 20, n/2 का आंसर है हमारे पास 60 माइनस CF यहाँ पे लिख दिया है 44 डिवाइडेड बाय F है 45 मल्टीप्लाई C है 5। ओके, नाउ इनको हम कट भी कर सकते हैं 5 9 are, बट ध्यान में रहे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो सिंगल टर्म है, इसमें तो आप कट कर सकते हो, बट यहां से यहां पे कट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस उसके बाहर हम जा ही नहीं सकते। तो ज्यादा कट करने की ट्राई मत करना, और वैसे भी आपके पास तो कैलसी है, आप कट ही क्यों करोगे, सीधा ही मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखते जाओ। ओके, सो यहाँ पे 20 प्लस, नाउ 60 माइनस 44, 60 माइनस 44 वो आएगा 60 डिवाइडेड बाय 9, सो 20 प्लस 9 इज 9, राइट, 7 रहेगा तो 70 हो जाएगा, 9 7 63, अगेन 7 रहेगा, 9 7 63, अगेन 7 रहेगा, तो 7 7 7 तो चलते जाएगा, तो इनको मैं प्लस कर देता हूं 8, तो फाइनल आंसर इनको ऐड करके आएगा 21.78। ओके, 21.78 थाउजेंड रुपीज। यूनिट क्या रहेगा इसका 1000 रुपीज। ओके, तो ये आपका आ गया मीडियन का आंसर। अब हमें फाइंड करना है P80, राइट। सो P80 के लिए सबसे पहला काम क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको क्लास फाइंड करना है। सो P80 क्लास लिख दो, क्लास इंक्लूडिंग, एक आप याद रखोगे तो बाकी सब याद रहेंगे। यहाँ पे n/2 है, परसेंटाइल में n/100 रहता है, 80 वाला फाइंड कर रहे तो आगे रहेगा 80 ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ये ध्यान में रहे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फॉर्मूला चेंज ना हो। यहाँ पे n/2 रहता है, उसमें n+1/2 रहता है। पहले बोल रहा हूं कि फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके रखना। नाउ क्लास इंक्लूडिंग, ये है 80, n की वैल्यू पुट करें तो वो है 120 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन, 0 0 हो जाएंगे कट, 12 8 96, तो 96 किस में जाएगा 89 में, तो 96 आएगा नहीं, किस में जाएगा वो 108 वाले में, राइट। 89 में 96 इंक्लूड नहीं होता है, किस में इंक्लूड होता है 108 में। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास, मतलब कि आपको लिखना है 25 to 30। याद रहे आप क्लास लिख रहे हो तो क्लास में से ही आंसर लिखो 25 to 30। यहां से आपको लोअर लिमिट L 25, मतलब ये वाली ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, क्लास लेंथ C अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, 30 माइनस 25 5, CF वो तो हम ऊपर का लिखते हैं तो 108 नहीं लिखना है, बट क्या लिखना है 89, और F वो तो जो है मीडियन क्लास का वही लिखना है 19। अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सो P80 लोअर लिमिट L प्लस, एक ही चीज में चेंज होता है वो यहाँ पे, इसकी जगह पे हमें लिखना है 80 n/100
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, बाकी सब तो सेम ही होता है। एल है 25, इनका आंसर हमारे पास है 96, माइनस करेंगे सी एफ 89 डिवाइडेड बाय एफ है 19, मल्टीप्लाई करना है सी 5। ओके, 96 माइनस 89 7 into 5 35 डिवाइडेड बाय 19, राइट। ये आप एलसीएम में यूज करना है, मतलब ये जो भी डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो 96 minus 89 7 into 5 35। नाउ 35 डिवाइडेड बाय 19 बन जा 19 then 5 3 8 सा and 1 4 सा, so 1.84 आगे कमी आएगा 84। ओके, सो 25 प्लस 1.84, तो इनका आंसर आएगा 26.84, राइट, 1000 रुपीज। आप एलसीएम में कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 26.84 थाउजेंड रुपीज, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर लिमिट ऑफ 25 richest employees is 26.84 थाउजेंड रुपीज। मतलब जो हमें इनिशियली पूछा गया था कि लोअर लिमिट फाइंड करो 25 रिचेस्ट एम्प्लॉइज की, तो वो आएगी 26.84 थाउजेंड रुपीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टू क्वेश्चंस, please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.